means organization of cellular structure at the molecular level. और हम डीप में जाएंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर के डीप में जाएंगे, क्या है फिर उसके अंदर, ओके फिर हम डीप में जाएंगे, इसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. ओके सो सेल बिल्ड cells build supramolecular structures. सेल्स जो है सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सेल्स जो है सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा बने भी होते हैं. सेल्स बनाते भी हैं सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को, अपना स्ट्रक्चर को सेल खुद बनाता है. ओके कैसे बनाता है, कुछ लिया इधर उधर से, आगे दिखाएंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स लिया, उस सबको जोड़ जोड़ करके अपना स्ट्रक्चर बनाया सेल. ओके cells build their own supramolecular structures, as well as in turn supramolecular structures. These supramolecular structures define the boundary of the cells. They perform specific functions inside the cell. Okay so we will see this. But these supramolecular structures are made up of what? Macromolecules, biomolecules. Supramolecular structures are made up of biomolecules, and the biomolecules are of two types: छोटा biomolecule और बड़ा biomolecule, micromolecule and macromolecule. Okay so micromolecule किसको कहते हैं and macromolecule किसको कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर. मैक्रोमोलिक्यूल जिसका एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट कम है, ओके एक मोनोमोलिक यूनिट है. दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड पॉलीमर्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड polypeptides. These are macromolecules. So statement is macromolecules and their monomeric subunits differ greatly in size. Figure 110. They are monomeric units. So macromolecules are made up of either a same type of monomeric unit or different type of monomeric units. For example, if you consider starch, then it is made up of same type of monomeric unit, that is alpha D glucose. And if you consider DNA or RNA or protein, then it is made up of different type of amino acids, different monomeric subunits are there. Or if in the case of RNA and DNA, different nucleotides are there, different nitrogenous bases are there. So there is not same time in these cases, all the monomeric subunits are not the same, but in starch and cellulose, the monomeric glycogen, the monomeric subunits are the same. So these, what are these monomeric subunits? These monomeric subunits differ greatly in size. Why? Because you can see in this structure, figure 110. See, can you see this figure? Yes sir. These are the monomeric subunits found in protein. This is the component of the monomeric subunit. Not here. The components of nucleic acid, the head is here. This is because these are the nitrogenous bases. तो nitrogenous bases अकेला monomeric subunit नहीं है न्यूक्लिक एसिड में. न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक सबयूनिट है न्यूक्लियोटाइड. ओके तो न्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज सुगर. तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज सुगर plus phosphate is equal to nucleotide, and the nucleotide is the monomeric subunit of the nucleic acid. So these are the different types of nitrogenous bases based on which different types of nucleotides are there. Okay, adenine, guanine, these are the purines. Purines,
Uracil, thymine, and cytosine are the pyrimidines. Purine pairs with pyrimidine. So adenine pairs with uracil by 2 hydrogen bonds, and thymine also by 2 hydrogen bonds. Guanine pairs with cytosine by 3 hydrogen bonds. And pentose phosphate sugar means inside the nucleotide, these components are covalently linked. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज 5 कार्बन शुगर के बीच में कोवेलेंट लिंक है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर 5 कार्बन शुगर और फोस्फेट के बीच में भी कोवेलेंट लिंक है। ठीक है, तो आप पूछोगे कहां पर अटैच्ड होता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज से आपका एडेन, ये वाला नाइट्रोजनस बेस। ओके, नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन, ये वाला H रिप्लेस होता है तो फर्स्ट कार्बन, and phosphate it attached to the 5th carbon. Okay, no, 6th carbon. This is the 6th carbon. First, second, sorry, ये pentose है ना, 5th carbon, सही बोल रहा है, 5th carbon. This is first carbon, second carbon, third carbon, 4th carbon. To the 4th carbon, 5th carbon is there, CH2OH, and to this 5th carbon, phosphate group is attached. तो ये है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक सब यूनिट इज द न्यूक्लियोटाइड, और इसमें प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स में क्या है मोनोमेरिक सब यूनिट? लिपिड्स में मोनोमेरिक सब यूनिट्स आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि लिपिड में द कंपोनेंट इज एक्चुअली द ग्लिसरॉल, दिस इज द हेड पार्ट, a simple type, in a simple type of lipid, the glycerol is there, 3 carbon compound है, and to this 3 carbon compound glycerol, each carbon compound is having the functional group OH, और इस OH में एक H जो है रिप्लेस होकर के आपका जो है fatty acid chain can be attached to it. Okay, so if one fatty acid chain is attached here to the first carbon, and the second and third carbon is still having OH, then it will be called as monoglyceride. When 2 carbon 2 OH groups यहाँ पर अगर रहा आपका फैटी एसिड, देन क्या हुआ डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, तीनों के साथ अगर एलिफेटिक चेन रहा तो ट्राइग्लिसराइड, एंड अ कोलिन टाइप ऑफ स्पेशल थिंग इज आल्सो देयर। ये हम लोग बाद में देखेंगे, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे, बट दीज आर द फैटी एसिड चेन, ये फैटी एसिड है। ओके, ओलेट एंड पामेट, these are 2 examples of the fatty acid. ओलिएट, ये ओलिएट मिला आपको प्लांट सोर्स में, एंड पामेट मिलता है आपको एनिमल्स में, जो घी खाते हो आप उसमें पामिटेट है, और ओलिएट ओलिव, आप ओलिव ऑयल खाते हो उसमें ओलिएट मिलता है। सी दिस डबल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डबल बॉन्ड इज मेकिंग इट the unsaturated fatty acid, and this is the saturated fatty acid. These are the monomeric subunits. कहाँ थे? यहाँ पर in figure 110 that we have seen. अब देख रहे हैं डायमेंशन इसका। An alanine molecule is less than 0.5 nanometer long. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के क्लास में, अलानिन का डायमीटर 0.5 नैनोमीटर है। हीमोग्लोबिन, the oxygen carrying protein of the erythrocytes in the red blood cells, consists of nearly 600 amino acid subunits in 4 long chains folded in globular shapes and associated in the structure of 5.5 nanometer. 600 अमाइनो एसिड है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, चारों पॉलीपेप्टाइड चेन इज हाइब्रिडाइज्ड बाय आपका आयरन एटम, and the diameter is 5.5 nanometer. In turn, proteins are much smaller than राइबोसोम्स, इससे भी बड़ा राइबोसोम्स है, 20 नैनोमीटर है उसका डायमीटर। अब आप देखिए यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर अंतर है अलानिन और हीमोग्लोबिन में 11 गुना का, तो 11 गुना 11 गुना 11 कर लोगे आप, वॉल्यूम में इतना अंतर हो जाएगा।
ओके, यहाँ पर अंतर है हीमोग्लोबिन और राइबोसोम में 20, 4 गुना का, तो 4 गुना 4 गुना 4 कर लोगे 3 बार, क्योंकि वॉल्यूम है 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना बड़ा हो गया, वॉल्यूम में यहाँ अंतर है। फिर विच इन टर्न राइबोसोम भी जो है बहुत छोटा है, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसका क्या है डायमीटर 1000 नैनोमीटर है। तो 1000 नैनोमीटर राइबोसोम से ये कितना गुना बड़ा हो गया? 50 गुना बड़ा। तो 50 गुना 50 गुना 50 कर लोगे तो राइबोसोम से हो गया ये 1,25,000 गुना ज्यादा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। It is a long jump from simple biomolecules to cellular structures that can be seen with the light microscope. 111 illustrates the structural hierarchy in cellular organization. कहने का मतलब है सिंपल बायोमोलिक्यूल से बना आपका क्या सुप्रा, अगर आप ये समझें कि सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, ये जो हम लोग अभी देखे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स, ओके, इवन न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, ये सब सिंपल बायोमोलिक्यूल्स है। भले इसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल है, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल है, दीज आर ऑल सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। तो इस सिंपल बायोमोलिक्यूल से सेलुलर स्ट्रक्चर के बीच में एक लॉन्ग जंप है। इस सिंपल बायोमोलिक्यूल से सेलुलर स्ट्रक्चर्स कैसे बना? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, दीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर्स। Okay, membrane are the cellular structure and even the cytoskeletons also. तो ये एक लॉन्ग जंप है, हो सकता है बीच में कुछ हो। ओके, तो those are the supramolecular structures. Supramolecular structures combine and they give to cellular structures that can be seen with the light microscope. Light microscope से आप ये बायोमोलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हैं। ओके, इवन आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन। वो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी करके उसका हम डिफ्रैक्शन पैटर्न से स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो है आपको सेलुलर स्ट्रक्चर्स को आप लाइट माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डिटेल में देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स जो है, कुछ एक पॉइंट बोलना चाह रहे थे, मिस कर रहे हैं यहाँ पर, भूल गया, अभी याद था। ओके, याद आ जाएगा तो बोल देंगे। It is a long jump from the simple biomolecules to cellular structures that can be seen with the light microscope. Illustrates the structural hierarchy in the cellular organization. देखिए वो फिगर 1.11. These are the simple biomolecules, macromolecules and the monomeric units. ये सब सिंपल बायोमोलिक्यूल्स है। ये सब सिंपल बायोमोलिक्यूल से क्या बना? सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन, क्रोमेटिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। क्रोमेटिन में से क्या कैसे बनता है? क्रोमेटिन सिर्फ डीएनए ही नहीं होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर क्रोमेटिन बना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना? इसमें सिर्फ लिपिड बाइलेयर ही नहीं होता है, प्रोटीन्स भी होता है। यहाँ पर नहीं दिखाया प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ प्रोटीन दिखाया है, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सो दिस इज अ सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स structure. Cell wall is made up of cellulose completely. So many cellulose molecules are there in the cell wall. So this is made up of, और ये सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है क्या बनाया? फिर सेल को बनाया, सेल के स्ट्रक्चर को, इसके ऑर्गेनेल्स को। क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियस को बनाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा एनवेलप किया, सेल को एनवेलप दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेल को एनवेलप देने के लिए फिर एक ऊपर से सेल वॉल दिया ताकि टफ लेयर हो, क्योंकि ये प्लांट है, नहीं तो मैकेनिकल इंजरी होगा, सेल विल बर्स्ट। क्योंकि प्लांट में क्या करना है, इसको पानी सोखना है जमीन से, तो वाटर इसके अंदर हमेशा आते रहेगा। तो ओस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल रहता है,
ताकि सेल का वॉल्यूम चाहे जितना भी पानी इससे पास करे, जाइलम फ्लोएम से वाटर का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो, सेल में ऑस्मोलरिटी जो है उसका, सेल का वॉल्यूम मोर और लेस सेम रहे, इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं, क्योंकि वाटर जो ग्राउंड से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, दैट वाटर विल बी हाइपोटोनिक टू द सेल, तो सेल विल स्वेल अगर प्लाज्मा सेल वाल नहीं होता और बर्स्ट हो जाता है। इसलिए प्लांट में सेल वाल जरूरी है। हम लोग पानी पीते हैं, जमीन से नहीं सोखते हैं, पानी कभी कभी पीते हैं जब जरूरत पड़ता है तब, लेकिन प्लांट जो है कंटिन्यूअसली पानी सोखते रहता है 24 घंटा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जमीन से इसका वाटर का एब्जॉर्प्शन होते रहता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोलना चाह रहे थे, दिमाग में था भूल गए। एनीवे, the monomeric subunits of proteins, nucleic acids and polysaccharides are joined by covalent bonds। अब ये बात आप ध्यान में रखिए, बताया मोनोमेरिक सब यूनिट्स जो आपका पॉलीमेरिक सब यूनिट बना, उसमें क्या है, मोनोमेरिक सब यूनिट आर ज्वाइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, बट in supramolecular complexes where many macromolecules are held together, for example in the case of इसमें जैसे क्रोमेटिन में ही देख लीजिए, क्रोमेटिन में प्रोटीन और डीएनए के बीच में जो बाइंडिंग है वो कोवैलेंट बाइंडिंग नहीं है, ओके, क्योंकि प्रोटीन जो है दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड डीएनए में क्या है, फॉस्फेट जो ग्रुप एक्सपोज्ड है टुवर्ड द इनर साइड, ओके, उसमें क्या है आपका एसिडिक है दे आर, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप देखोगे वहां पर OH की जगह O- लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहता है कि अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है इतने pH पर, 7 pH पर, इट विल बी इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए माइनस है। और अमाइन बेसिक ग्रुप क्या होता है अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, इसीलिए वहां NH4 देखोगे लिखा हुआ रहेगा। ऑलरेडी वैलेंसी जो है नाइट्रोजन का 3 ही है, तो NH3 लिखा रहना चाहिए आपको, तो NH3 इज आइडियल कंडीशन। अब उसमें ज्यादा आप उसका अल्कलिनिटी बढ़ाओगे, अगर pH बढ़ाइएगा तब जाकर के वो NH3 कंडीशन में आएगा, अदरवाइज अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट विल बी NH4। सो इसलिए आगे हम देखेंगे उस फिगर को, मैं आपको उस बताएंगे कहाँ थे। तो मोनोमेरिक सब यूनिट्स जो है पॉलीमर जो बना रहा है तो वो तो कोवैलेंटली लिंक्ड है, बट सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स में दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है यहाँ भी प्रोटीन और डीएनए के बीच में, इन द क्रोमेटिन, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन इज देयर, बिकॉज इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल, पोलर हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और इधर भी लिपिड बाइलेयर है, हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों तरफ का हाइड्रोफोबिक टेल जो है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ओके। एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हिच इज इंसर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या है, जो अमाइनो एसिड फेस कर रहा है हाइड्रोफोबिक रीजन पर को, वहां पर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं प्रोटीन से, और जो आपका पोर्शन प्रोटीन का दे आर एक्सपोजिंग आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां वो पोलर होगा। साइटोप्लाज्मिक टेल इज आल्सो पोलर एंड द हाइड्रो, तो इस तरह से उसका रहता है। और ये फिर पूरा प्रोटीन जो है दे आर इन द नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन विद द लिपिड्स, ओके। सो यही कह रहा है ये कि माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। नॉन कोवैलेंट, अब कोवैलेंट इंटरेक्शन कितने तरह के हैं, 3 तरह के होते हैं कोवैलेंट इंटरेक्शन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप सुने होंगे, ओके। कहीं भी ऐसा आपको क्वाड्रपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 ही मिलेगा, क्योंकि इसी 1 2 3 बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फुलफिल हो जाता है, क्योंकि जिसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अपना इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट कर लेता है, जैसे कार्बन।
ओके, एक दो तीन, ज्यादा से तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इन सुपर। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो है वो कितने तरह के हैं? अमॉन्ग दीज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है? बिटवीन द पोलर ग्रुप्स। ओके, आपको हम बताएंगे पोलर ग्रुप क्या होता है, पोलर क्यों हो गया, क्योंकि वाटर में पोलर ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल में। ओके, आयोनिक इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्ज्ड ग्रुप्स। पोलर ग्रुप क्या है? दे आर पार्शियली चार्ज्ड ग्रुप। ओके, दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनिक, बट चूंकि ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। ओके, तो ये हम बताएंगे। तो स्लाइटली वो निगेटिव हो गया, स्लाइटली पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन की साइड, सो इसलिए ये पोलर ग्रुप बन गया। और एक होता है कंप्लीटली चार्ज, जैसे NaCl। ओके, तो बिटवीन कंप्लीटली चार्ज ग्रुप्स। ओके, जैसे हिस्टोन और बायोलॉजिकल सिस्टम में हिस्टोन और DNA के बीच में जो इंटरेक्शन है, कंप्लीटली चार्ज्ड। अमाइनो एसिड्स में NH4+ एक्सपोज्ड है, एंड इन द DNA क्या है? फॉस्फेट ग्रुप पर O- है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस अमॉन्ग नॉन पोलर ग्रुप्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। नॉन पोलर ग्रुप के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जैसे आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। ओके, एंड वंडर वाल इंटरेक्शंस, दीज आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस। ये भी एक तरह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही है। ओके, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ऑल ऑफ विच कितने तरह के हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड 1, आयनिक इंटरेक्शन 2, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन 3, और वंडरवाल या लंडन फोर्सेस 4 तरह के हो गए, और 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। These non-covalent interactions are described in chapter 2 in detail. आगे हम लोग देखेंगे तब। Large number of weak interactions between macromolecules in supramolecular complexes stabilize these assemblies, producing their unique structures. अब ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं, एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, क्यों वीक है? बिकॉज द एनर्जी ऑफ द डिसोसिएशन इज लेस। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा आपको, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को तोड़ने में आपको कम एनर्जी लगता है, इसीलिए ये वीक इंटरेक्शन है। लेकिन बट चूंकि सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे उसमें एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, और उस मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी मोनोमेरिक सब यूनिट्स बहुत सारे हैं, और मोनोमेरिक सब यूनिट्स के बीच में दीज आर द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। तो बहुत सारा हो गया नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, कोई एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं। जैसे DNA के जो दोनों स्ट्रैंड है उसके बीच में, हर बेस के बीच में या तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब थाउजेंड्स ऑफ बेसेस आर देयर इन अ सिंगल, थाउजेंड्स, मिलियंस। ओके, तो अब दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये जो इंटरेक्शन है आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ large number of hydrogen bonds present along the length of the DNA molecule. हाँ, हम यहाँ पर यही बोलना चाह रहे थे, आपको भी याद आया। इट इज अ लॉन्ग, कहाँ पर, हाँ, इट इज अ लॉन्ग जंप फ्रॉम सिंपल बायोमोलिक्यूल्स टू सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन आप DNA को देख सकते हैं। ओके, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप अपनी आंख से DNA को यू कैन विजुअलाइज। क्यों DNA को आप देख सकते हैं? क्योंकि DNA जो है जब आइसोलेट करोगे, DNA इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, और उसके स्ट्रैंड का लेंथ, अगर सारा क्रोमोसोम के लेंथ को अगर आप स्ट्रेच कर दें तो इट विल गो इन मीटर्स।
So last stage में जब precipitate करते हैं तो so many DNA molecules accumulate and they become precipitate. So precipitate को हम देखते हैं. You cannot see a single मतलब एक individual DNA molecule. You cannot see. You are seeing the precipitate of the DNA molecule. इसी तरह RNA का भी precipitate देख सकते हैं. Messenger RNA जब isolate करते हैं तो powdery like precipitate मिलता है, तो RNA मिलता है उसमें. इवन प्रोटीन प्रेसिपिटेट यू कैन सी, क्योंकि प्रोटीन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो गए और प्यूरिफाइड फॉर्म में है, तो यू कैन सी, बट नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल कंपाउंड, यू कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. उसके लिए एक्सरे क्रिस्टोग्राफी करना पड़ता है. एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ईच एंड एवरी एटम्स placed in that crystal, उसका diffraction pattern से image obtain किया जाता है. Then we analyze the structure of that compound. इसी तरह प्रोटीन्स का सबका स्ट्रक्चर निकाला गया है. इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है. तो इसके स्ट्रक्चर को निकालने से पहले क्या किया, प्यूरिफाई किया, ओके, क्रिस्टलाइज किया. बायोफिजिक्स वाले करते हैं इसे, क्रिस्टलाइज किए, उसको प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करेंगे. उसका भी एक अलग मेथड है, पूरा वास्ट साइंस है कैसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. हर कंपाउंड का अलग अलग मेथड. क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा जाता है, तब उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेट किया जाता है. ऑल ऑफ विच, तो डीएनए का भी स्ट्रक्चर कैसे निकाला, वाटसन एंड क्रिक ने इसी तरह निकाला, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से. ऑल ऑफ विच, ओके, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो ये सब मिल करके, इतने सारे वीक इंटरेक्शन मिल करके एक स्ट्रॉन्ग बना देते हैं पूरा का पूरा असेंबली को. अब देखिए, दो तरह की बात है. एक तो है कि इन प्यूरिफाइड फॉर्म हाउ द बायोमोलिक्यूल्स विल बिहेव, and in the cellular system how they will behave, because in the cellular system that individual biomolecule is not staying alone, it is there in the presence, simultaneous presence with many different kinds of biomolecules, macromolecules, suprastructures, enzymes, okay. सो इन विट्रो स्टडी, क्योंकि जब हम इन विट्रो स्टडी करते हैं इन लेबोरेटरी, इन ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टडी, तो उस समय आप प्रोटीन को प्यूरिफाइड फॉर्म में लेके स्टडी करते हो स्टडीज, तो इसकी वजह से मे ओवरलुक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स. और इन विवो स्टडी जो है